سر مجھے ضمناً یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو جی جی آپ نے جو فرمایا بہت اچھا کہا آپ نے کہ یقیناً ایک بڑے جو لیجنڈس ہوتے ہیں ان کی نگاہ صدیوں کے زمانے پر محیط ہوتی ہے آگے کے لیے، جی 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 کیونکہ مجھے لگتا ہے اقبال کو اس چیز کا خود بھی اعتراف تھا، تبھی جی انہوں نے کہا اقبال ہی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، جی اقبال ہی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، ہاں کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل، اس جی میں کوئی بہت شک بہت نہیں کوئی۔ شکریہ، تھینک تھینک یو۔ جی سر، اگر اجازت ہو تو نیکسٹ سیکنڈ ہم شروع کریں۔ جی جی بالکل کریں۔ شکریہ سر۔ سر میرا آپ سے پہلا یہ سوال ہے کہ جو بارہا آپ سے فون پہ بھی ڈسکس ہوا ہے اور ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے، ہاں تو سوال یہ ہے سر کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے ڈفرینٹ سیکشن آف سوسائٹی کا کیا رول ہونا چاہیے، اور اس زبان کے ساتھ ہم نے کتنی ڈسکرمنیشن کی ہے، ہمارا کیا رول تھا، کیا ادا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا، اس کے بارے میں سر آپ سے جاننا چاہیں گے۔ میں دیکھیے عمران صاحب، میں اس کے لیے تو کچھ اپنے ذاتی تجربوں سے بھی بات کروں گا، کیونکہ میں اردو کے اعتبار سے ایک ایسے ایریا میں ہوں، ایسے خطے میں ہوں جو کہ ادبی اعتبار سے اور اردو کے اعتبار سے کافی بنجر ہے۔ تو جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو مختلف زبانوں کے درمیان اردو کی حیثیت ایک ایسی ہے جیسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں، اور ان جزیروں کے درمیان ایک پل ہوتا ہے جو ان کو ملا دیتا ہے، اور جب اس پل کو نکال دیا جاتا ہے، جب توڑ دیا جاتا ہے، جب اس کو ڈیمیج کیا جاتا ہے، تو پھر وہ جزیرے رہ جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی تعلق آپس میں نہیں رہتا۔ اردو جو ہے وہ ایک رابطے کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ مختلف کو سر جوڑتا اور اس کے نواب ساتھ سر آپ کی آواز سر آپ جو کی ہے آواز کٹتی ہے سر۔ جی جی تھوڑی لوکیشن چینج کرے یا پھر اب آئی؟ جی 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 اب سر بہتر کلیئر ہے، میری کلیئر آواز ہے۔ آ رہی ہے؟ اب آ جی رہی جی جی ہے؟ اب سر، جی بہتر ہے۔ جی سر، بالکل کلیئر آ رہی ہے آواز۔ Sir, is it audible clearly now? ہاں Hello? جی جی جی، جی آ رہی ہے بالکل آپ یس ہاں، وائس از ویری ٹھیک آواز ہے آ رہی ہے؟ سر، آپ جی سر، جی سر آپ کنٹینیو کریں۔ اب میری آواز آ رہی ہے؟ تو جی سر آپ کنٹینیو کریں، عمران آواز صاحب، آ رہی ہے۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو نے جو ہے مختلف زبانوں کے درمیان جو مختلف زبانوں کے جزیرے تھے ان کو ایک پل بن کر جوڑا، اور جب اس پل کو بیچ سے نکالنے کی کوشش کی گئی، نہ اس کے ساتھ نا انصافی کی گئی، تو پھر آپ اردو کے بجائے تاریخ میں جھانک کے دیکھ لو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ایک بات، اور دوسری بات جہاں تک اردو کا سوال ہے، میرے خیال میں ہم لوگوں کو اردو کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے جہاں مادری زبان کے نام پر بات چل رہی ہے، تو جو مادری زبان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اس سے اردو جو ہے اس کو پس پشت رکھنے کی رہ جاتی ہے۔ جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی میری زبان ہے، مجھے وہ پنڈت نہرو کا ایک، جب کہتے ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بن رہا تھا تو کسی نے کہا جی اردو کس کی زبان ہے، کس کی مادری زبان ہے، تو کہیں پنڈت جی نے کہا تھا کہ اردو میری زبان ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہماری اپنی اپنی زبان، مادری زبان کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اردو ہم سب کی زبان ہے، بے شک، اور بالکل۔ ہم سب کی زبان ہے، یہ سب کی مادری زبان ہے، کیونکہ یہی زبان ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، بات کرنا آسان کرتی ہے، ہمارے لیے آسانیوں کی راہیں ہموار کرتی ہے، لیکن ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ اور میں اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں 1975 میں چھٹی کلاس کا سٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ ہائی اسکول مانسر میں، اور ہمارے اسکول میں چیلنج یہ تھا کہ چھٹی کے بعد بچے کو اردو بحیثیت مضمون رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت ہمیں یہ تھا کہ ہم تاریخ اور جغرافی اردو میں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ہمیں ہندی رکھنا پڑتی تھی، لیکن جب میری باری آئی، جب میں وہاں چھٹی میں پہنچا، تو میں اس پہ تھوڑا سا میں نے یہ ایک سٹینڈ لے لیا کہ میں اردو ہی سبجیکٹ پڑھوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے بیٹا اب آئندہ کے لیے آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، اور اس کے بعد جب 1982 میں گورنمنٹ ہائی اسکول مجالتہ میں جب وہاں اگزام دے رہا تھا اردو کا، اور پورے حال میں ہی ایک واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اردو کا پرچہ دے رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو سلسلہ چلا
आज के दिन तक वहाँ उर्दू के बच्चे 10th तक, 11th तक हर दफ़ा बच्चे वहाँ हैं और उर्दू पढ़ रहे हैं। उसके बाद कोई रुकावट नहीं हुई। मुझे लगता है कि हम उर्दू के लिए अपनी कोशिशें जो इनफ़रादी कोशिशें हैं, जो आदमी जहाँ है, उसके लिए 2 तरीकों से उर्दू को ज़िंदा रखा जा सकता है कि हम अपनी कोशिशें भी करें और जिसको उर्दू आता है कम से कम 2 या 4 आदमियों को वो उर्दू ज़रूर सिखाएँ। क्योंकि उर्दू बोलने से, समझने से और पढ़ने से आती है। हम बहुत और उम्दा। अदब जी, अदब तख़लीक़ करना बड़ी बात है। लेकिन अगर हमने वो लोग जो हमारे अदब को पढ़ेंगे, अगर हमने वो लोग तैयार नहीं किए, तो अदब जो है वो राइट। अलमारी की ज़ीनत बन के रह जाएगा। शुक्रिया। जी, जी, हेलो। जी, बहुत शुक्रिया नवाज़ुद्दीन साहब। मैं गुज़ारिश करता हूँ, आपने बहुत ही कीमती बातें और तजर्बात से जो है मुस्तफ़ीद किया और हमें सवालों की जो जवाब है उसको समझने में बहुत आसानी हुई। मैं मुश्ताक खालिद साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि वो अपने सवालात जो हैं नवाब साहब से करें। जी, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। नवाब साहब से मेरा सवाल ये रहेगा कि आज कंप्यूटर से किताबों की कंपोजिंग वगैरह होती है और उर्दू वेबसाइट्स हैं। तो आप हमें ये बताएँ कि उर्दू की बक़ा के लिए इस ज़बान को टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से हम आहंग करना कितना ज़रूरी है? मोहतरम मैं इतना पढ़ा-लिखा ज़्यादा पढ़ा-लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक दानिश्वर का एक दिन ये कहते उसको उनको सुना कि मोमन अपने ज़माने के तकाज़ों से हम आहंग होता है। तो ज़बान भी अगर ज़माने के तकाज़ों से हम आहंग नहीं होगी, तो वो अपनो आप को बाकी नहीं रख सकेगी, अपनी बक़ा को कायम नहीं रख सकेगी, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि ये साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसमें कंप्यूटर जो है, उसका अहम रोल है, वेबसाइट का रोल है। तो इसलिए जो ये कंप्यूटर है मेरे ख़्याल में हमें जो अपने नौजवानों को उर्दू जो है जैसे उर्दू का एक उर्दू कंप्यूटराइज़ेशन जो है उसको सीखना चाहिए और उर्दू का जो है ये इससे जो उर्दू ज कंप्यूटर के ज़रिए उर्दू जो है, इसकी तरवीज जो इसका अशायत है, वो भी आसान हो जाती है। बड़ी तेज़ी से यानी आज मैं अगर सोशल मीडिया पे कुछ लिखता हूँ, कंप्यूटर से टाइप करता हूँ, उसको डालता हूँ, वो जो मैं इस तरीके से अगर यूँ चाहूँ कि अखबारों के ज़रिए से 10 दिन भी नहीं 10 साल में भी नहीं कर सकता हूँ, वो काम मैं चंद दिनों में कर लेता हूँ, वो दुनिया के कोने-कोने में वो बात पहुँच जाती है। मैं आपको एक छोटी-सी एक बात करूँ कि मैंने एक अफ़साना लिखा था उज़ान, तो ग़ालिबन तारिक साहब ने ही उसको कहीं किसी साइट पे डाल दिया, तो फिर मुझे बहुत दूर से फ़ॉरेन से भी एक फ़ोन आया कि जनाब हमने आपके इस अफ़साने को 1 दफ़ा नहीं, बल्कि 5 दफ़ा बार-बार पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंप्यूटर और जो टेक्नोलॉजी जो है, इसके साथ उर्दू को हम-आहंग करना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। बहुत शुक्रिया बहुत मुश्ताक शुक्रिया साहब। सर। आपका सवाल और जो है मेरा जी। मेरा एक और सवाल भी है कि उर्दू की तरक्की और तरोीज के सिलसिले में आजकल क्या-क्या मुश्किलात और रुकावटें दरपेश हैं? इस बारे में भी अगर आप अपने ज़रिए ख़यालात का इज़हार फ़रमाएँ तो नवाज़िश होगी। देखिए, मैं कह रहा हूँ जनाब, एक जो हमारा ये बात चल रही है जिस पर मैडम कादरी साहिबा ने बड़ी वज़ाहत से बात की, कि मादरी ज़बान। अब हमारे यहाँ बेशुमार ज़बानें हैं यहाँ पर। अगर आप सिर्फ़ ज़िला डोडा को ले लें, तो थोड़े से एरिया में इमरान साहब बेहतर जानते हैं, कि वहाँ 10-15 ज़बानें आपको मिल जाएँगी। हर 10-12 किलोमीटर के बाद आपको एक छोटी-सी ज़बान का इज़ाफ़ा मिलने को मिलेगा। तो वो हमारी मादरी ज़बानें हैं। तो जब हम मादरी ज़बानों का वो लेके बैठ जाएँगे कि ये मादरी ज़बान है, तो उससे उर्दू जो है पसे-पुश्त चली जाती है। मेरे ख़्याल में उर्दू के लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है और उर्दू के बक़ा के लिए ये ज़रूरी है कि लोग जो है, जो उर्दू दान हैं, उर्दू नवाज़ हैं, मुहिबान उर्दू हैं, अगर ये इसको वो अपने घरों में इसको ज़िंदा रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ और जो अपने आस-पास का माहौल है, उसमें अगर कुछ बक़ल निकालें और उसको बक़ल निकाल के अगर वो 2-2 4-4 बच्चों को उर्दू सिखाएँ, तो मेरे ख़्याल में वो उर्दू की तरह भी अशायद में तरबिय और अशायद में
अहम रोल अदा कर सकते हैं। मुश्किलात जो हैं वो तो आपको अंदाज़ा है कि इस वक़्त जो है उर्दू जो है थोड़ा-सा जो हमारा जिस एरिया में हम जहाँ खित्ते में रह रहे हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है कि जी उर्दू पसे-पुश्त में जा रहा है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। जैसे जब आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो यकीन जानिए कि हमारी तरह और भी बहुत सारे बल्कि हमसे कई गुना बेहतर सोचने वाले लोग हैं और वही उर्दू का सबसे बड़ा असासा है उर्दू के फ़रोग़ में। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया नवाज़ुद्दीन साहब। हमारे ऑडियंस भी जो है कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, तो मेरा आखिरी जी, सवाल होगा और उसके बाद हम ऑडियंस को अलाउ करेंगे क्वेश्चंस के लिए जी। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए। सर ये मुझे बताएं कि खुतबा और शोरा का ज़बानों की तरक्की में हमेशा रोल तो रहता ही है, लेकिन आज ये क़ारीन के हवाले से मेरा एक सवाल है कि क़ारीन की क्या हैसियत है कि किताबें तो छप रही हैं, लेकिन क़ारीन की तादाद जो है उसमें कमी आ रही है, तो क़ारीन का कितना रोल होता है एक ज़बान की तरक्की में? मेरे ख़्याल में जनाब क़ारीन अगर ना हों, किसी ज़बान को क़ारीन अगर नहीं मिलें, तो जैसे अभी शायद कादरी साहिबा ही ज़िक्र कर रही थीं कि अगर क़ारीन ना मिलें तो फिर हम उस ज़बान उस लेवल पर चले जाएगी, जहाँ संस्कृत है। वरना संस्कृत का जो लिटरेचर है, वो कहते हैं ना ओल्ड इज़ द गोल्ड, तो संस्कृत गोल्ड है, लेकिन उसको क़ारीन नहीं मिल रहे हैं। तो क़ारीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिटरेचर है, तो लिटरेचर को पढ़ने वाले लोग होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि उर्दू क़ारीन के एतबार से इतनी बदनसीब भी नहीं है। उर्दू को पढ़ने वाले लोग अब भी मौजूद हैं। मैं किसी ज़माने में आपको पता है मैं हिंद समाचार में कोई 15-20 साल लिखता रहा जी, और जी। मुझे ऐसे लगता था कि पंजाब में उर्दू नहीं है, हरियाणा में उर्दू नहीं है। मगर यकीन जानिए मुझे पंजाब और हरियाणा के मुख्तलिफ हिस्सों से बेशुमार फ़ोन आते थे, जो अफ़सानों को पढ़ के उन पे बात करते थे। जी, जी। तो आज भी पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, क़ारीन उर्दू जो है क्योंकि उर्दू का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये अपने आप को हर ज़माने के तकाज़ों में ढाल लेती है, या तकाज़ों को अपने अंदर ढाल लेती है, समा लेती है और उससे इसके क़ारीन की तादाद जो है, आज भी मुझे लगता है बरकरार है और ये बढ़ती रहनी चाहिए, क़ारीन का बहुत बड़ा रोल है। क़ारीन नहीं होंगे तो लिटरेचर किस लिए? लिटरेचर क़ारीन के लिए है, अदब क़ारीन के लिए है और कारी जो है अदब के लिए है। जी, जी। बहुत शुक्रिया सर। अब हम जो है ऑडियंस को अलाउ करते हैं कि वो अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज़ कर सकते हैं और हमारे साथ जी, स्पीकर पैनल में 2 ऑडियंस हैं, खलील अहमद साहब और नसीम गुलाबगढ़ी साहब। अगर जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो खलील साहब आप पूछ सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब मेरा आपके दोनों मेहमानों से एक ही सवाल है कि जनाब आपको नहीं लगता कि हमारी जो भी साबका जो हुकूमतें रही हैं, उन्होंने उर्दू की जड़ें मजबूत करने के लिए जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया और जिसकी वजह से आज हमारे को ये सब देखना पड़ रहा है जबकि मैं बाकी रियासतों में जाता हूँ जहाँ की सरकारी ज़ुबानें अलग अलग अपनी अपनी सरकारी ज़ुबानें हैं जैसे पंजाब गुजरात महाराष्ट्र तो वहाँ मैं जब देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमतों ने उर्दू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है जो कि उनके हाथ में था वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे अगर वो चाहते तो मेरे ख्याल से आज उर्दू लखनपुर से पहुँच और लखनपुर से लद्दाख तक आपको उर्दू उर्दू दिखती लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है तो क्या आप नहीं मानते कि ये हमारी जो पिछली मतलब ये सरकारों की वजह से इन्होंने मैं इस चीज़ की को मानता हूँ जी, खलील कि साहब हमारे आपका जो है सवाल समझ आ चुका है कि हुकूमती सतह पर और निजी सतह नहीं पर बहुत और ज़्यादा मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ हुई है हम अगर देखेंगे जैसे हमारी दूसरी हमारी पड़ोसी रियासतें जी, हैं जी, जैसे पंजाब मुख्तसर पकड़ो आप बात करें, आपका जो सवाल है या तो वो मुख्तसर कर दें और जी मेरा ये वो सवाल है कि सवाल आपको का शॉर्टकट आपको हमें ये चीज़ समझ लगता आपको भी ये महसूस हो रहा है कि हमारे सरकारों की वजह से ये हाल हो गया उर्दू का उनको जो जी, जी। इसका उर्दू रिप्लाई को देंगे अभी स्पीकर साहब अभी नवाब साहब आप जो जी है इस मेरे पर ख़्याल में थोड़ा शार्तन बात जी, जी, इस सिलसिले में मेरे ख़्याल में मैडम कादरी साहिबा बड़ी वज़ाहत से सवाल का जवाब दे सकती हैं। जी डॉक्टर साहिबा मसरूफ़ भी हैं, अगर वो सुन पा रही हैं तो ठीक, अदरवाइज़ क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जो है कल भी जश्न उर्दू के हवाले से रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, तो वो हमारे साथ
बिजी हैं अपने काम में, तो वो रिप्लाई नहीं कर पाएंगी। खैर मैं यहाँ कहना मैं चाहूँगा इनका कि इनका मैं इनका सवाल का एक ही जी मुख्तसर बात करूँगा जी कि हम जो है किसी के बजाय, मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मैं उर्दू के साथ वाबस्ता हूँ, जी लेकिन जी सर, आपकी बात आवाज़ ये थोड़ी है कट रही है। कि मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी अब हेलो? थोड़ी बेहतर हुई है सर, हेलो? बेहतर। जी जी अब आ रही हाँ, है सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के, हम किसी के ऊपर क्या कहें, हमने अपने बच्चों को उर्दू के लिए तैयार नहीं किया। तो मेरे ख्याल में सरकार का असल सरकार तो हम हैं। लोग जब आपको लोगों को, मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा कि जहाँ पर कोई सरकारी कोशिश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे उर्दू वहाँ बेहतर है। तो मेरे ख्याल में हम इस पर, ये सवाल जो है, इस पर ना तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, देना चाहूँगा, लेकिन इसका यही है कि जो आदमी जो है अपना हिस्सा डाले, उर्दू के फ़रोग़ में अपना हिस्सा डाले कि वो अपना कितना हिस्सा डाल रहा है। वो कितने बच्चों को अपने आस-पास तैयार कर रहा है, कितने बच्चों को उर्दू सिखा रहा है, अपने बच्चों को किस हद तक उसने उर्दू के लिए तैयार किया है। मेरे ख्याल में इसका इस तरीके से हमें इसको सोचना चाहिए। जी जी बिल्कुल। सर मैं एक बात थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ इसमें। जी, जैसे जी, कि जी, जी। महाराष्ट्र, गुजरात या बाकी जो भी स्टेट है ना, जहाँ हाँ, की हाँ। सरकारी ज़ुबान उनकी अलग है, लोकल ज़ुबान है, तो वहाँ सर एक रूल है, बनाया हुआ है ऑलरेडी उन्होंने कि प्राइमरी तक या हाई स्कूल तक गवर्नमेंट ने वो बताया हुआ है कि कंपलसरी है आपको हर स्कूल को, चाहे वो प्राइवेट हो या हाँ, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइमरी तक हाँ। या तो फिर हाई स्कूल तक उनको वो ज़ुबान में बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल जी, के ऊपर डिपेंड है, वो हिंदी पढ़ाएं या उर्दू पढ़ाएं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जी, 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 सरकारें जो जी। जिम्मेवार हैं इस चीज़ में। जी, जी, आपने जो कुछ कहा वो ठीक है, और बाकी मैं इस पे ज़्यादा इससे और कुछ नहीं कहना चाहूँगा जो मैंने जी कहा है। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू, थैंक ये यही नवाब साहब के कहने का ये मकसद है कि इनफरादी ज़िम्मेदारी निभाएँगे तो उर्दू जो है फ़रोग़ पाएगी। और हमें जो है कहा जाता है पब्लिक ही किसी भी जगह की जो है सरकार भी होती है, तो उसी के हाथ में कमांड होती है, तो लोग जिस तरह से अमल करेंगे तो उसका ज़रूर नतीजा सामने आता है। हमारे साथ नसीम गुलाबगढ़ी साहब हैं गुलाबगढ़ से। नसीम साहब आपका कोई सवाल है जहाँ अपने तासरात हैं पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। हेलो। जी, जी, जी। जी, मेरी आवाज़ आ वालेकुम रही है? अस्सलाम। जी, जी, आ रही जी, है, आ जी, रही है। बिल्कुल आ रही है। जी, मुझे बड़ा अफ़सोस है कि मैं पूरी तरह आपको सुन ना पाया। जहाँ तक मैंने देखा और नवाब साहब को मैं अभी तक सुन रहा था, तो जहाँ तक मेरे सोचने का ताल्लुक है, किसी ज़ुबान के साथ इंसाफ़ करना और उसको हक़ देना बहुत ही मुश्किल और मुश्किल तर है। यहाँ भी देखा होगा आपने कि यहाँ नवाब साहब ने कुछ अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया, जो कि सरासर हिंदी से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जे भी इस्तेमाल किया गया, ज़बान किया गया, इस तरह के कुछ और लफ़्ज़ भी हैं कि अगर हम उर्दू की बात कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमें उर्दू का ही उसी में बात करनी चाहिए। और कहीं बीच में मैडम साहिबा की भी मेरे भाई, थोड़ी-सी मैंने सुनी थी। जी, जी। जी, पहले सुन आप लीजिए प्लीज़। आपसे थोड़ा नीचे कर सकता हूँ? जी? मैंने आपसे जी, पहले जी, ही आप मोहतरम ये अर्ज़ नसीम किया था साहब कि मैं आपकी उर्दू ही के बात एतबार, का एक मिनट, जी, जी। मैं आपसे हेलो? बात कर रहा हूँ कि जी, मैंने नसीम पहले ही साहब ये अर्ज़ किया था नसीम कि मैं साहब उर्दू के एतबार से बड़ी बंजर धरती से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, जी। जी। मेरी तो मैं भी आवाज़ आ बंजर धरती से, रही है? मोहतरम बात सुन लीजिए, मैं भी और एक मेरी बंजर धरती बात, से हाँ, बहुत दूर-दराज़ और इलाके से, जब आप मीडिया में अभी बात अभी कर रहे हो, अभी तो अभी मेरा मेरी कहने बात, का मतलब ये है कि मीडिया में आप उस चीज़ को लेकर आप, चलें। मैं तो कोई ना बड़ा इतना मुफ़क्कर हूँ, ना कोई चीज़ हूँ, लेकिन जहाँ हाँ, तक मेरा नहीं, ताल्लुक, एक उस्ताद बासित उस्ताद मैंने भी 40 साल लगाए मोहतरम। तो जहाँ तक मैंने देखा, तो आपको जब बात करनी है तो आपने उसके नज़रिए से करनी है, ना कि आप सोशल मीडिया में, ठीक है कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मुझसे भी गलती हो, लेकिन मुझे अपने आप कंट्रोल करना है। मेरा कहने का मुद्दा ये है, गुस्ताखी मत कीजिएगा, मैं सुन रहा था, नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम, मैं मुझे बड़ा ये अफ़सोस कह है उस रहा चीज़ हूँ, का। मुझे भी जी, बड़ा जी। अफ़सोस है कि इस उर्दू की जो हरूफ-ए-तहज़ीब है, इनमें कुछ हिंदी के अल्फ़ाज़ भी शामिल हैं, उनको निकाल दीजिएगा। नहीं, वो आप पर बड़े निकाल दीजिए गहराई ताकि में ज़बान चले साफ़ गए हो जाए। मोहतरम। नहीं, क्योंकि अगर आप आप चाहें उस्ताद तो हैं, राउंड ये द टेबल मैंने भी कहा हम कि बैठ इनको के निकाल कर दीजिए, सकते ज़बान हैं। साफ़ हो जाएगी।
देखिए इसमें हिंदी भी नहीं है, इसमें अरबी के भी हैं और भी हैं, काफ़ी सी लातीनी नहीं वही ज़ुबान कह है रहा हूँ ये। ना आप। लेकिन मेरा कहने नसीम का मुद्दा ये है नसीम कि साहब साफ़ बात है, मेरी बात ये हाँ, ये है, ये हम मेरी बात कहते हैं, अगर आप आप ये कह सुन रहे हो, सुन मेरे पा रहे मुद्दे हैं की बात नहीं है ना, आप हिंदी क्यों सुना रहे हो? जी, एक मिनट नसीम साहब आप जो है जो नवाब साहब कह रहे हैं वो भी आप गौर से सुने कि जब उर्दू में इतनी नहीं, वुसअत है जहाँ पे अगर हिंदी का वर्ड इस्तेमाल हो गया या इंग्लिश का हो गया उर्दू के बीच में इसमें कोई कबाहत नहीं है और रही लहजों की और तलफ़्फ़ुज़ का आप बता रहे हैं तो ये किसी का भी इतना दुरुस्त नहीं हो सकता है और ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हम बात कर रहे हैं मजमूई तौर पे। बात जी, जी। अबरार जी, अबरार जी प्लीज़ यार आप माइंड मत कीजिए, मैंने लफ़्ज़ अंग्रेज़ी कह दिया, आप ऐसी बात मत सोचें। मेरा कहने का मुद्दा ये है कि जब हम कोई टॉपिक लेकर चल रहे हैं, किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इसमें मिक्स अप तो है ही है, जैसे मैंने भी 2-3 गलतियाँ कर दी, होती रहती हैं। लेकिन जनरली जो है, हमने लिया है उर्दू। उर्दू में ये रमूज़ व अक़ाफ़ जो हैं, तो मैं अच्छी तरह से मेरे पास इतनी ना बड़ी डिग्री है, ना इतना दावेदार हूँ। हाँ, अलबत्ता ये है कि जहाँ तक मैं खुद अपने आप पे वो रखता हूँ, अबूर तो मैं ये यहाँ तक भी कर सकता हूँ। तो मोहतरम ने जो कहा ना कि ज़ुबान के ताल्लुक से, मैं उस बात से करना चाहता हूँ, मैं कोई आपसे वो उलझना नहीं चाहता हूँ, कोई जी, जी, चीज़ नहीं आप चाहता हूँ। मुख्तसर बात आप तासरात दे दें या फिर कोई अगर सवाल है तो सवाल कर लें। आप ऐसा तबसरात अगले जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ा-सा मौका दीजिए, मैं उस पे ज़रूर जो रमूज़ औक़ाफ़ है उसके बारे में बोल लूँगा, कोई बात नहीं, हम भी हक रखते हैं इस चीज़ का। जी, लेकिन जी। गुस्ताख़ी माफ़, जहाँ तक मैंने देखा, आप भी प्लीज़ ये कीजिए कि हम में आजकल अगर कोई भी चीज़ है, उर्दू का इसको ख़ात्मा करने के लिए हमने खुद ही इसका वो बेड़ा उठा रखा है। हमने खुद ही दूसरी ज़ुबानों को इस पे मुकद्दम बना दिया है और उसको पीछे लेकर जा रहे हैं। अगर उर्दू के इतने हम वो हैं, मुहिब हैं, इतने चाहने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हमने अपने आप पर सख्ती करनी है, मेरी ये एक राय है। जी, जी। नहीं, इस हवाले से नवाब साहब ने काफ़ी वज़ाहत से किया कि हर कोई अपना रोल अदा करे और दूसरा जो अपने देखिए करीब जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उर्दू की तरफ माइल करवाएँ और ये उन्होंने बड़ा अच्छे से कहा। तो अब जी, जी, जी। जो है नहीं, मैं इसमें ज़्यादा पूरा कोई सुन नहीं बात पाया, नहीं है। मैं पूरा सुन नहीं पाया। मैं पूरा सुन नहीं जी, जी, पाया, मैंने हमारे इसलिए पास पहले ही वक़्त की माज़रत भी की नज़ाकत थी। को देखते हुए हाँ। हम जो है प्लीज़ आप जी, जी। जो है इस जी, जी। तरफ गौर फरमाएँ कि हमारे टाइम का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई है आपका सवाल तो आप जो सीधा सवाल करें मुझसे। कौन मैं? जी, जी, अगर है नहीं, आपका अब कोई सवाल और सवाल तो नहीं, कर सकते हैं नहीं अदरवाइज़ सवाल सवाल से सवाल ही पैदा होते हैं ना, सवाल से सवाल पैदा होते हैं। जब मेरी अब पहली जी, जी, वो एक ही तसल्ली सवाल बख्श ना आप हुआ तो और कर लें आप अगर करना है। नहीं, मैं इससे ही क्योंकि मैं इनसे मुतारिफ़ नहीं, ये मुझसे मुतारिफ़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक इसका अदना-सा मैं भी उस्ताद रहा हूँ, तो मैं गुस्ताख़ी की माफ़ी चाहता भाई हूँ। अगर कोई बिल्कुल, उस्ताद नहीं, मुझे नहीं, गुस्ताख माफ़ी हो तो हम आइंदा आपसे चाह इंशाअल्लाह लेते हैं कि नज़र हम इसके बदल उस्ताद नहीं हैं काफ़ी भाई। जी, जी, जी। मैं तो उस्ताद नहीं हूँ आप और आप आप बड़े खुले दिल से कीजिए। नवाब साहब ने पहले ही से ही थोड़ा-सा मुझे बीच में ही रोकने की कोशिश की थी, तो आइंदा जो असल अगला में प्रोग्राम होगा, नवाब ठीक है, साहब वक़्त की हम कदर करते हैं। हम मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, शुक्रिया। नवाब साहब जो है आप जितनी बात आपने कही थी उसी का रिप्लाई देने के लिए उन्होंने कहा था कि इतने में ही वो रिप्लाई दे देते हैं जी, तो ज़्यादा जी, बेहतर है। जी। ठीक है, ठीक है। तो अल्ताफ़ साहब आप क्योंकि अब हमारे पास वक़्त की कमी है और जितने भी जी। स्पीकर पैनल में हैं यही लोग एक-एक मुख्तसर 1-1 मिनट में सवाल करेंगे या कोई अपनी बात रखना चाहते हैं मुख्तसर वक़्त में रखें। जी अल्ताफ़ नवाब साहब। अब तारिक अबरार साहब बहुत शुक्रिया। अब मैं तमाम यहाँ पर जो पैनल में लोग हैं सबको मेरी तरफ से खुलूस और अक़ीदत से अस्सलाम वालेकुम। जश्न वालेकुम उर्दू सलाम। मनाया जा रहा है तो इस हवाले से हमारे जो मेहमानान हैं डॉक्टर साहिबा हैं और जनाब नवाज़ साहब हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उधमपुर जैसी ज़मीन जहाँ दूसरी ज़बानों का जो है वो एक किस्म का दबदबा है और वहाँ से एक केएस ऑफ़िसर निकलता है अपनी गूनागूं मसरूफ़ियात के बावजूद वो उर्दू की तरफ आते हैं, फ़िक्शन लिखते हैं और आलमी सतह पर अपना मुकाम बनाते हैं, उस बात के लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। उसके अलावा आज के पैनल मेंबरान का जो इंतखाब है, जश्न उर्दू के हवाले से यूम इकबाल मनाया जा रहा है।
तो डॉक्टर साहिबा ने बातें की हैं, नवाब साहब ने अपनी आरा तजावीज़ उर्दू के हवाले से रखी हैं, वो बड़ी खूबसूरत थी और काबिल गौर हैं। चंद गुज़ारिशात मेरी ये रहेंगी कि अ, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो अ, लगातार एक फ़रोग़ के पैमाने से गुज़र रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें तहक़ीक़ भी हो रही है, इसमें नई-नई जहात वो शामिल हो रही हैं, जैसे इसमें लिसानियात आ गया है, तहक़ीक़ हो रही है, तनक़ीद हो रही है और शायरी हो रही है, फ़िक्शन हो रही है और मतलब दूसरी ज़बानों से जो है मग़रबी ज़बानों का तसव्वुर भी अब इसमें आया है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि उर्दू का फैलाव जो है, वो वसी होता जा रहा है। मगर बात यहाँ ये है कि इस फैलाव के बीचों-बीच में हम लोग जो अपनी ज़िम्मेवारियाँ अदा कर रहे हैं उससे भी कोई नाआशना नहीं है। क्योंकि यही वो ज़ुबान है जिससे आज यूनिवर्सिटी सतह पर बड़े-बड़े इदारे जो हैं आप देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या हिंदुस्तान भर में कितनी यूनिवर्सिटियाँ आप गिन सकते हैं जहाँ पर उर्दू को बहुत अच्छे से फ़रोग़ दिया जा रहा है। वहीं अगर जम्मू-कश्मीर के हवाले से मैं नवाब साहब से ये मेरा सवाल रहेगा कि जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से उर्दू का दर्जा जो था, वो एक सरकारी ज़ुबान का था और अब कुछ पिछले अरसे में उसको सरकारी ज़ुबान के दर्जे से लाकर 5-6 ज़बानों के पैमाने में खड़ा कर दिया गया है। इससे उर्दू का जो मर्तबा है, वो किस कदर मतलब कम हुआ है या किस तरह से उसके ऊपर असरात मुरत्तब हुए हैं? एक तो ये रहेगा वो इसके हवाले से अगर जनाब इसमें चाहें तो दें। मैं यही चाहूँगा कि पहले इस हवाले से जनाब अपना जो है वो नज़रिया दें, तो उसके बाद मैं उनसे अगला सवाल करने की जसारत करता हूँ। जी, अल्ताफ़ साहब मोहतरम थोड़ा-सा एक ही आपका जो सवाल पहला काफ़ी है। जी, जी। जी, जी, नवाब साहब आप बोल रहे हैं और अल्ताफ़ साहब से कह रहा हूँ कि एक ही सवाल प्लीज़ रखें क्योंकि वक़्त का ख़्याल रखें प्लीज़। जी, बिल्कुल, मुख़्तसर करेंगे बिल्कुल। देखिए, जी, जी। मेरी सर बात ये है आपकी कि मैं इस आवाज़ सवाल का मेरी आपकी आवाज़ आ रही आवाज़ है? अभी क्लियर नहीं आ रही है सर आवाज़ आ रही है? थोड़ा-सा। अब ठीक एक है मिनट, सर। जी, जी। अब आ रही है? हेलो? अब आ रही जी, है अब सर तो आ आप। रही है, नवाब साहब आवाज़ आ रही है आपकी, फरमाइए। जी, जी। जी, जो जी आपका एक सवाल है कि इसकी तो मैं कुछ एक सवाल का जो आपका जिस किस्म का आपने ये दूसरी ज़बान इस पर तो मैं पहले बात कर भी चुका हूँ और मैं इस पर सारी बात इसका जवाब देने की पोज़ीशन में भी नहीं दे भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि ज़बान को मानने की बात नहीं है, मनवाने की बात नहीं है, ज़बान अपने आप को खुद मनवा लेती है। मैं किसी कुछ थोड़ा अर्सा पहले बैंगलोर में गया था, तो मुझे कहीं उर्दू नहीं दिखा। तो मुझे बड़ी बड़ी परेशानी हुई, मैंने देखो 150 किलोमीटर का सफ़र किया, तो मुझे सिर्फ़ एक जगह, एक मज़ार पे सिर्फ़ वो उसका वो लिखा हुआ था कि ये फलाँ आदमी का ये फलाँ बुज़ुर्ग का मज़ार है, वो उर्दू दिखा। तो लेकिन जब मुझे एक शख़्स देखा, वो दूसरे शख़्स को एक शादी का कार्ड दे रहा था और वहाँ पर उसने जो शादी के कार्ड के बाद में एड्रेस लिखा था, वो सारा उर्दू में लिखा हुआ था। तो यार मैंने उसके हाथ से लिपक के वो कार्ड ले लिया। मैंने कहा मुझे बताओ यार उर्दू दिखाई नहीं और आपने यहाँ इसका लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जनाब हमने अपनी कोशिशों से हमारे उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो दूसरी चीज़ जो हमारे बस में नहीं है उसकी हम बात करने के बजाय अगर खुद उर्दू को फ़रोग़ देने की कोशिश करें और उर्दू को बढ़ाएँ और आगे चलाएँ, सिखाएँ, तो मेरे ख़्याल में उर्दू के लिए वही एक सबसे अच्छा रास्ता है। बाकी आपका कुछ सवाल ऐसा है जिसका मैं जवाब नहीं जी, अल्ताफ़ साहब आप दूसरा सवाल कर जी। लें। जी, जी। दरअसल मसला ये है कि नवाब साहब एक अच्छे फ़िक्शन निगार हैं। तो बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनका बराह रास्त मैडम साहिबा बेहतर जवाब दे दी चूँकि वो इसी उर्दू की फ़ील्ड से हैं। तो अब सरसरी तौर मेरा एक ये सवाल रहेगा जनाब कि उर्दू को लेकर लोग जो हैं वो रोज़गार के हवाले से मायूस हैं। तो क्या उर्दू मौजूदा दौर में रोज़गार का सबब बन सकती है? या इसमें भी कोई जो है वो पेशरफ़्त की ज़रूरत है? और अगर इसमें रोज़गार के असबाब पैदा किए जा सकते हैं, तो कौन से जो है मराहिल से गुज़रना ज़रूरी है? मेरे ख़्याल में जैसे अभी पहले भी ये सवाल हुआ था कि इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर जैसे कंप्यूटर है, जर्नलिज़्म है और ऐसी चीज़ें जो हैं इनके साथ इसको जोड़ा जा सकता है।
और मुझे लगता है कि आज भी ऐसी मायूसी की बात नहीं है, जहाँ बहुत सारी जगहों पर जैसे-जैसे आप एक तरफ से ये कहो कि मैं आपकी एक बात करता हूँ, कि आप जैसे कह रहे हैं कि उर्दू को अब हम जो सानवी दर्जे पर ले आए हैं, ये हमारा सरकारी था, पहले इसकी ये हमारी सरकारी ज़ुबान थी। लेकिन मुझे एक बात बताएँ, हमारा आज भी जो उर्दू का रिकॉर्ड है, बहुत से डिपार्टमेंट्स का, बहुत सारे क्या तकरीबन सारा, तो वो आफ्टर ऑल इसको देखने के लिए तो उसकी ज़रूरत रहेगी। इसके लिए तो उर्दू वाले लोग चाहिए। तो उर्दू वाले लोग जो हैं, इसको जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ देखो हमारे पास ये इब्रार साहब हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी तरीके से जैसे कंप्यूटर के साथ है और इसमें और भी छोटी-छोटी चीज़ें जितनी भी हैं, कंप्यूटर के साथ है, टेक्नोलॉजी के साथ है, जर्नलिज़्म है, तो इन सब चीज़ों के साथ इसको जोड़ के मेरे ख़्याल में इनको बढ़ाया जा सकता है। इतने छोटे जी, रोज़गार जी। के ज़राए जो हैं, वो पैदा किए जा सकते हैं। मायूसी की बात नहीं। जी, जी, बिल्कुल सर। जी। दिराग गिरी साहब हमारे साथ हैं। दिराग गिरी साहब आप सवाल कर सकते हैं, ऑब्ज़र्वेशन दे सकते हैं, तासुरात। जी, जी, जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं नवाब साहब के पड़ोस में ही हूँ। जी। जी। जी, मैं नवाबुद्दीन साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ। एक बात मुझे बहुत पसंद आई, सवाल कुछ भी नहीं है, बस नसीम साहब बार-बार पूछ रहे थे। हालाँकि ये बोल चुके थे कि मोहतरम ने बताया था कि अगर उर्दू को बढ़ाना चाहते हो, तो अपनी नस्ल में शुरू करो ना, अपनी नस्लों को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ उर्दू, तो यूँ ही उर्दू की तरक्की भी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि अ, हम ये कहेंगे फलानी ज़बान के इसमें अल्फ़ाज़ हैं, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, बल्कि यूँ उर्दू में तरक्की नहीं हो सकती, बल्कि उर्दू का नाम ही है लश्कर, ज़ुबानों का लश्कर है, तो इसमें तो हर ज़ुबान की मतलब के अल्फ़ाज़ यहाँ पे मतलब दाखिल होंगे और तराशे जाते हैं। खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पे अल्फ़ाज़ यानी दाखिल होते हैं उर्दू में। उर्दू की यही जी, ख़ुसूसियत बहुत है। शुक्रिया। और इस वक़्त मौजूदा दौर में तो हमें मतलब हर अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ जितने अच्छे तरीके से हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत बेहतर मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतर होगा। तो बस मैं जी, इनकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। ज़फ़र चौधरी साहब एडवोकेट ज़फ़र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज़ अपनी बात रखें। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। तारिक जी, साहब, मैं बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि डॉक्टर अपने मोहतरमा शहनाज़ गनई साहिबा हैं और नवाब साहब हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, ये तो अहले इल्म का एक बड़ा मजमा है और सारे लोग जो हैं अदब से वाबस्ता हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो जो खैरात जो है वो घर से पहले जो है वो देना लाज़मी बनता है और अपने घर से जो है खैरात दी जाती है। अ, हम अपने घरों में वो माहौल नहीं पैदा कर रहे कि उर्दू असल में क्या। मैं गई रात की एक छोटी-सी एक बात कहूँगा कि मेरी बेटी ने अपनी खाला से कहा कि खाला जान, हम तो जा रहे थे बस इत्तेफ़ाक से इधर आपकी तरफ आ गए। तो उसने बड़ा उस पे कहा कि इत्तेफ़ाक से, हालाँकि वो बिल्कुल छोटी है 5-6 साल। तो वो ये रहता है कि मैं जब बात करता हूँ तो मेरा वो होता है, मतलब मैं उस अंदाज से बात करता हूँ कि बिल्कुल वो उर्दू के हिसाब से, मतलब वो नहीं कि वो उसको बिल्कुल वो करके, तो वो इस किस्म के यूज करती रहती है अल्फाज, मतलब बीच बीच में। तो बात ये होती है कि हम अदालत में जाते हैं, लोग बहुत कोशिश करते हैं कोर्ट को इम्प्रेस करने की अंग्रेजी झाड़ झाड़ के, बट हम जब उर्दू जो असल में जो उर्दू है, जब हम उस ट्यून से बात करते हैं तो डाइस पे बैठा हुआ जो एक शख्स जिसको जज कहते हैं वो बड़ा इम्प्रेस होता है, उस समय कि ये कोई उर्दू नोइंग आदमी है, तो हमें इसमें बड़ा फख्र महसूस होता है। लिहाजा उर्दू उर्दू जो है वो हमारी एक सदियों पुरानी ज़ुबान है और ये हमारी विरासत है। वो लोग जो अपनी विरासत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो वो लोग जो हैं वो कामयाब लोगों में से नहीं होते हैं। मेरे ख़्याल से हमें अपने घरों में, अपनी फ़ैमिली, अपने बच्चों के साथ अच्छी और टिपिकल टाइप ऑफ उर्दू जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो फिर एक बाहर मैसेज जाएगा। तो उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ हम खुद करेंगे तभी हो सकेगा। आप अगर हुकूमती अदारों से कोई उम्मीद रखोगे
تو یہ ارباب اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے یہ سب جو ہیں اس معاملے میں شاید اتنے کامیاب نہ رہیں. ہمیں اس کا تحفظ خود کرنا پڑے گا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ میری رائے ہے، یہ ٹوٹے پھوٹے میرے الفاظ تھے. بہرحال پروگرام آپ کا بہت زبردست، بہت بڑھیا پروگرام تھا. نواب صاحب کی باتیں ہم نے سنی، محترمہ کی باتیں سنی. آپ سب لوگوں کا بڑا احسان ہے کہ آپ لوگ وقتاً فوقتاً اس طرح کے معناز شخصیات کو لاتے ہو اور ہمیں انہیں سننے کا موقع ملتا ہے. بہت بہت آپ کا شکریہ. جی بہت بہت شکریہ ظفر چودھری صاحب. آپ نے جو ہے میرے جو الفاظ میں نے کہنے تھے وہی آپ نے کہہ دیے، تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے اور آپ کا یہ مطالعہ ہے. تو یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ الطاف نظامی صاحب نے روزگار کے حوالے سے بات کی کہ اردو میں روزگار کے کیا امکانات ہیں. تو ظفر چودھری صاحب جو ہیں ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، تو میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایف آئی آر لگتی ہے تو اس پہ اردو کا جو لکھا ہوتا ہے منشی کی طرف سے، تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک ہی شخص جب میں اویلیبل ہے. تو جج جو ہے اس شخص کے پاس اتنا رش ہوتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے وکیل کے اس کے پاس اس سے وہ ٹرانسلیٹ کروائے جائیں پیجز. بہت سارا مواد ایسا ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ روزگار کا امکانات ہے کہ 200 400 روپیہ ایک پیج ٹرانسلیٹ کرنے کا وہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور انہیں وقت وکلا حضرات کو وقت ملتا ہے 15 دن کے بعد رجوع کریں. تو اس طرح سے اتنے زیادہ مواقع ہیں. اردو ٹائپنگ کے کورسز آپ دیکھیں، اردو کمپوزنگ میں اتنا زیادہ سکوپ ہے. یہاں پہ 50 روپے پر پیج کا اردو کا ریٹ ہے، تو انگلش میں وہی 15 یا 20 سے اوپر نہیں ہوتا. تو بہت زیادہ امکانات ہیں. کس کس پہلو پر بات کی جائے کہ روزگار کا بہت زیادہ سکوپ اردو میں ہے. اردو صحافت میں اردو کا بہت وہ ہے امکان ہے روزگار کا. تو میں بس اب شکریہ کرنا چاہتا ہوں. تو صاحب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر ہمارے پروگرامز کے حوالے سے بات کریں، کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ ہم نے کوشش کی ہے، یہ چھوٹی سی کوشش ہے، تو قارئین اور ہمارے سامعین اس کو کس حد تک کامیاب مانتے ہیں تو وہی بتا سکتے ہیں. نواب صاحب اپنا کوئی پیغام کچھ دینا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کا، تو اس کے بعد ہم مجھے شکریہ جی پیش کریں. مجھے لگتا ہے کہ جو بات مجھے کہنی چاہیے تھی جب میں کہنا چاہتا ہوں، ایڈوکیٹ جعفر صاحب نے وہ کہنے کا حق ادا کر دیا. جی جی اس کے بالکل. بعد وہ کچھ کہنا جو ہے وہ واجب نہیں بنتا کہ ایک تو ہم اردو کو اپنے گھروں میں زندہ رکھیں اور اردو کا محافظ خود بنے. جی بالکل سر. ٹھیک ہے، جی کیونکہ آدمی غلطیاں نکالنے سے بڑا نہیں ہو جاتا. غلطیاں تو ہم سبھی لوگ غلطیوں کا کہیں گے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی غلطیاں ہیں، تو غلطیاں نکالنی بھی چاہیے اور یہ اچھی بات ہے. لیکن بڑی بات وہی کہ آپ کتنے لوگوں تک اردو پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں کو اردو سکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو پڑھنا سکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو سکھاتے ہیں اردو. اگر آپ کے پاس آپ ایک محلے میں رہ رہے ہیں اور صبح و شام اگر آپ کوئی 2 لمحے نکال کے کچھ لمحات نکال کر آپ 2 بچوں کو بھی اردو پڑھنا سکھا دیں، تو میرے خیال میں آپ اردو کی اشاعت میں سب سے اہم رول ادا کر رہے ہیں. اور دور تو چھوڑیے، یہاں میرے جیسے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو مجرم کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے بچوں کو اردو بھی نہیں سکھا سکتے. جی جی جی، تو مجھے خیال میں یہی ہے کہ ہم اردو خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. جی جی بہت شکریہ سر. آپ نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی کہ ہمیں انفرادی کوششیں بھی کرنی چاہیے اور حکومتوں کے سہارے بھی ہم جو ہے اس کو اردو کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہماری جی بہرحال جشن اردو منانے کی ایک کوشش تھی اور پیشگی. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ہم نے پیشگی جو ہے جو جشن اردو منایا ہے، کیونکہ اردو ڈے تو کل ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا شیڈیول ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک سوموار کو اور ایک جمعہ کو. تو جمعہ کو ہم اردو ڈے بناتے تو اس کی بھی کوئی افادیت باقی نہ رہتی، کافی دن جی گزر ہو چکے ہوتے. تو اس لیے ہم نے پیشگی پروگرام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں تمام جو مہمان شخصیات ہیں اور تمام سامعین ہیں ان کا شکریہ باقاعدگی سے پیش کرنے کے لیے مشتاق خالد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے شکریہ کی تحریک پیش کریں.
बहुत शुक्रिया तारक भाई। मैं तारक अब्रार ऑफिशियल क्लब के तमाम मॉडरेटर हजरात, तारक अब्रार, इमरान फरीदी साहब, मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा और अपनी तरफ से आज के इस यौम इकबाल और जश्न यौम उर्दू के हवाले से जो प्रोग्राम हमने मुनक्कद किया, इस प्रोग्राम में हमारे जो दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी थे, मोहतरमा डॉक्टर शहनाज कादरी साहिबा और जनाब नवाबुद्दीन कसाना साहब, जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर हमें बहुत ही अपने ज़रिए ख़यालात से नवाजा और उर्दू के हवाले से हमारी मालूमात में बहुत इजाफ़ा फरमाया। मैं पूरे ऑफिशियल क्लब की तरफ से आप सबका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ और उसके अलावा हमारे सफ़े सामीन में जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, जिन्होंने बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारे साथ ताउन किया और जिन हजरात ने अपने तासुरात और सवालात पेश किए, मैं उनका भी मशकूर व ममनून हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप अपना ये ताउन इसी तरह हमारे साथ जोड़े रखेंगे, ताकि हम मज़ीद किसी इंशाअल्लाह। मौजू को लेकर प्रोग्रामों को कामयाब बनाने में आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। जी तारक साहब। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया बहुत।